Okay, so good evening to all of you and warm welcome to this webinar. I think you're used to having such kind of webinar, where, you are somewhere else, I am somewhere else, and we are together. And the topic of this webinar is, the dream, aspire, achieve, and create a life you love. So the thing is, there are so many of us, who will just like to, dream something, but those dreams are never fulfilled. Some people are only having the pipe dreams. Some are trying to go next level, like aspiring also. Yeah, I'm trying to do this thing and I aspire for it. I try to take further action on that. But still achieving part, what kind of dream we are able to fulfill and like that. There are still very less people who are like that. So is there any secret, like some people who can just have the dream and aspire also and achieve also? And there are some people who may be just there, okay, just dreaming and not achieving something. So do you get this point? Tushar Kaleji, what do you think? Yes, sir. आप कहाँ से हैं? मतलब do you understand हिंदी? हाँ सर, understand. अच्छा अच्छा, okay, very nice. और सलिल जी, what do you think? You have any dream? Yes, sir. Okay, very nice. So is it okay if I, keep calling you sometime and keep taking your opinion? Will that be okay? Yes, sir. Yes, sir. ठीक Sure. ठीक है, thank you. Now the question is, first of all, there are some dream, like some people say that dream are something which is not what you see when you are sleeping, but dream are something which are not allowing you to sleep. You are now so much charged up by those dreams and you feel, oh yeah, this is what I have to achieve in life. But question is that how these dreams are coming. Many of the dreams are given by the society, not by us. Suppose somebody meet you and they say, okay, you should have a Mercedes. What are you driving this Alto, Maruti Alto? You should be a big businessman and you should be driving a Mercedes or an Audi or a BMW. So that kind of a dream will be there. Oh yeah, I'll also drive my Mercedes. So that is one kind of a dream, which are, not your dream, but actually they are planted by the society. Do you agree with me, Tushar Babu, Tushar Kale ji? Yes, sir. है ना? तो कई बार तुषार जी आप ये बताइए, मेनी टाइम ये ऐसा होता है कि नहीं, कि भाई लोगों ने हमारे माइंड में प्लांट कर दिया जी कि देख तुषार काले जी की कितनी बढ़िया चमकती हुई टाई है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो तुषार जी को भले ही गर्मी भी लग रहा हो लेकिन तब भी वो टाई लगा के बैठेंगे। नो? हाँ सर। है ना? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सो उसमें क्या है, व्हाट इज अ ड्रीम विच आई हैव फ्रॉम माई ओन एंड व्हाट इज अ ड्रीम गिवन बाय द सोसाइटी? तो इसको कहते हैं प्रभाव वाला ड्रीम, कि ना somebody ने प्रभाव डाल दिया हमारे ऊपर तो उस तरह का ड्रीम आ गया। एक होता अभाव वाला ड्रीम। अभाव मतलब मान लीजिए कभी हमें मान लीजिए बचपन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, या मान लो गुरप्रीत जी, क्या मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूं मिला करके? विल दैट बी ओके? चलेगा सर, चलेगा ही है ना? जी सर, ठीक है, चलेगा। ठीक, ओके। हाँ जी जी। तो देखिए, इसमें ऐसा है कि अभाव ये कि मान लीजिए बचपन में हमारे साथ कुछ हुआ, मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं था या कुछ इकोनॉमिक हार्डशिप थी, एंड उस टाइम में हमारे किसी रिलेटिव ने हमारा मान लो मजाक उड़ा दिया कि भाई इसके पास ये है वो है, या मान लो हमारी मौसी का बच्चा था, उसको ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल गया, हमें नहीं मिला, बिकॉज माई फादर वॉज नॉट अर्निंग दैट मच, और वट एवर, कई कई अलग अलग चीजें होती हैं। तो हमने जी मन में ठान लिया कि ये अब तुम ये करके दिखाएंगे, ठीक है, और उसमें भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, पैसे ही पैसा कमाए जा रहे हैं। फिर उसकी एक था होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, कि भागते भागते गए, खूब पैसे कमाए, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखा, और एक दिन जी बीपी हो गया, डायबिटीज हो गई, वो गले में वो पट्टा पड़ जाता ना, स्पॉन्डिलाइटिस वाला, कि वो कुत्ते की तरह अपना पट्टा डाल के घूम रहे हैं। तो किस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं? तो ये जानना भी बड़ा आवश्यक है कि ड्रीम, हर एक ड्रीम बड़ा सुखद भी नहीं होता है।
ड्रीम वही तो ये हो गया अभाव वाला ड्रीम, कि हमारे अंदर कोई अभाव था तो इसलिए हम कोई ड्रीम कर रहे हैं कि जब तो इतने पैसा लूंगा तब तक, वो एक मूवी नहीं आई थी कौन सी, गजनी, वो कहती इतनी इतनी गाड़ी नहीं हो जाएंगी तब तक मैं वो शेट्टी ट्रेवल नहीं बनाऊंगी, तब तक जान नहीं, मतलब तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगी, वो लड़की थी। आई रिमेम्बर दैट। सो हमें ये सोचना बहुत आवश्यक है कि हमारे किस तरह के ड्रीम है, वो ड्रीम कहाँ से आ रहे हैं। वो अभाव प्रभाव से तो नहीं आ रहे हैं। अभाव प्रभाव से अगर कोई भी ड्रीम आएगा तो आप मान के चलिए आपके लिए बहुत सुखद नहीं होगा। और आप उन ड्रीम को कल्पना करके अचीव भी कर लेंगे ना, एस्पायर भी कर लिया, अचीव भी कर लिया, तभी ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ना ही जो सोसाइटी के लिए है वो उसके लिए अच्छा होगा। तो मैं किस तरह के ड्रीम हमारे लिए सुखद हो सकते हैं और जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है उसके लिए भी सुखद हो सकते हैं, उसमें ये चीज आती है हमारा स्वभाव और स्वधर्मा क्या है। स्वभाव से निकला हुआ और स्वधर्मा से जुड़ा हुआ हमारा जो ड्रीम है वो बहुत ही मंगल कारक होता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि स्वभाव कौन सी चिड़िया है, ये कहाँ पाया जाता है। तो इस विषय में मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोग, जैसे मोहम्मद दानिश साहब दिख रहे हैं मुझे, तो दानिश साहब आप बताएंगे कि ये स्वभाव कैसे अपना हम जाने। सर जैसे अपना जो ड्रीम है हम्म। उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ भी करना होगा तो वो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं उसको। जैसे दानिश साहब आप शेयर करना चाहेंगे कि आपका जैसे ड्रीम क्या है, जैसे आप जो बीएफएसआई वाला प्रोग्राम कर रहे हैं उसको करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं। जी सर, मुझे तो पहले तो मैं जॉब करना चाहूंगा ऐसे बैंक में। बहुत कोई बढ़िया। भी रोल मिला तो मैं उस पर भी काम करने को तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। थैंक यू दानिश जी। और एक मैम दिख रही हैं, उन्होंने कुछ लॉग इन का कहा, Redmi 9 प्राइम करके। तो मैम आप बोलना चाहेंगी कुछ। यह सिमरन जी एक हैं। बस देखिए मेरी आदत में आप लोगों से पूछता रहूंगा, बताइए। सैलिल जी आप बताएं कुछ, आपका ड्रीम क्या है और अपना स्वभाव हम कैसे जाने। सर ड्रीम तो एक प्रोफेशनल मींस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस होना है और वही ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी सी मतलब अच्छी पोजीशन होल्ड करना है। ठीक है, तो अच्छी पोजीशन होल्ड करने से हमें क्या मिलेगा। सर सर फॉर एग्जांपल अच्छी पोजीशन होल्ड करने से हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो मींस कॉन्फिडेंस वगैरह है, हमारी स्किल्स नॉलेज सारे सब डेवलप हो जाएगा सर। पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएंगी एक। पर्सनालिटी का एक हाई पोजीशन से क्या संबंध है। यस सर। पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होने का और हाई पोजीशन होने का क्या संबंध है। सर क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी सर रिफ्लेक्ट करती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पर्सनालिटी अगर अच्छी होगी तो हाई पोजीशन मिलेगा, या यस सर, या आई हाई थिंक कि पोजीशन होने कॉन्फिडेंस। से हमारी पर्सनालिटी बेटर होगी, हाँ, दोनों हाई में क्या। पोजीशन होने से हमारी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होंगी। अच्छा, ऐसा आपको फील होता है, ठीक है सर। लेकिन आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा है कि जैसे अगर आप गवर्नमेंट में जाएं तो कई लोग हैं, मान लीजिए जनरल मैनेजर हैं या डिप्टी सेक्रेटरी हैं, लेकिन उनके पर्सनल ट्रेट्स ऐसे होते हैं कि उनको चपरासी पानी भी नहीं पूछता है। और हाँ एक सर, व्यक्ति देखा है। हाँ हाँ, वो देखा होगा ना। यस सर। और कुछ मान लो कोई आदमी असिस्टेंट भी है या अकाउंट मैनेजर है, लेकिन तभी उसका स्वभाव और उतना उसका रुतबा ऐसा है कि हर आदमी दौड़ दौड़ के कह रहा है, हाँ भाई बताओ शर्मा जी आपके लिए क्या करना है। सर तो तो हाँ सर जी। वो रिलेशनशिप जो है सब अपने कलीग से सबसे अच्छे से रहते हैं, सबसे मेंटेन करते हैं। हम्म, उनका बिहेवियर है सबके साथ अच्छा है करके उनकी रिस्पेक्ट उतनी होती है। जी जी, तो आपने फिर अपनी बात को एक तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया सर, Yes. कि हाई पोजीशन से वो चीज नहीं आती है, बल्कि हमारे व्यवहार से हम लोगों को कैसी तरह ट्रीट करते हैं, हम अपना जो काम का जो डेडिकेशन है वो किस भावना से हम काम करते हैं, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन गेटिंग अ हाई पोजीशन, है ना। तो हम लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाई पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। नेचुरली जितना आपको हाई पोजीशन होगी यू विल हैव मोर कोलीग्स टू वर्क फॉर यू, you will have a higher pay package so that you can have a better luxury life. But even if you get high money, what you do with that money also is important. अगेन अगर आप उसमें अभाव प्रभाव में हैं तो आप क्या करोगे, जहां आपको मान लो 2 लाख या 3 लाख रुपए महीने मिलने लगा, आप क्या करोगे जी, घर ले लो जी, घर ले लो जी, ईएमआई ले लो, फिर एक गाड़ी ले लो जी।
फिर क्या हुआ, बंधन में बंध गए। फिर आपको ज्यादा पैसे वाला ही नौकरी करनी है क्योंकि ईएमआई चुकानी है। करते करते 20 साल जिंदगी के चले गए। उस बीच में अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि मान लो कहीं पे हमारा दिल लग रहा है, हमें वो काम करना है, लेकिन वहां पैसा कम मिल रहा है, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि उस समय लगेगा यार ईएमआई कैसे पूरी होंगी। तो यस सर। या मान लो जॉब पुणे में कर रहे हो, कई अपॉर्चुनिटी आई दिल्ली में, अरे यार मैं पुणे से दिल्ली कैसे जाऊं? तो आपके पास एक ज्योग्राफिकल लिमिटेशन भी पैदा हो गई। यस सर। तो उस केस में भी ये होगा कि हम तो भाई जा नहीं सकते, तो एक तरह से आप मकान की रखवाली करते हुए और गाड़ी की ईएमआई भरने के लिए थोड़े आप पैदा हुए हैं। यस तो सर, हमारी राइट। जिंदगी, हाँ, तो ये मैं कहना चाहता हूँ। तो हमारी जिंदगी का जो मेन उद्देश्य है वो है अपने स्वभाव व स्वधर्मा के हिसाब से जीना। सबसे बड़ी चीज ये है, जब हम स्वभाव व स्वधर्मा के हिसाब से जीते हैं तो बाकी चीजें कि हमें बढ़िया पोजीशन अपने आप मिलती है, अच्छा पैसा अपने आप आता है। मैं इन्हीं बातों को थोड़ी दो चार आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस चीज के लिए बड़ा पैशनेट हूँ कि कभी भी, जैसे कई लोग कहते हैं कि साहब हमें जो कहते हैं ना TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, बड़े खुश होते हैं जी, वाह ये बल्ले बल्ले कर रहे हैं कि अरे अब तो सैटरडे संडे आ गया जी। या उन लोगों को मंडे मॉर्निंग ब्लूज हो रहे हैं कि अरे भाई फिर जाना है ऑफिस। लेकिन ये क्या, ये बात दर्शाता है, ये बात दर्शाता है कि भाई हमें जॉब करने में मजा नहीं आ रहा है। तभी तो हमें भाई हम ढूंढ रहे हैं कि भाई किसी तरह वीकेंड आए, फिर हमें संडे मंडे जाने में फिर मजा नहीं आ रहा है। और उन लोगों को भी समस्या क्यों आती है? समस्या इसीलिए आती है कि जो कार्य कर रहे हैं वो उनके स्वभाव और स्वधर्मा वाला नहीं है, इसलिए खींचातानी में काम चल रहा है। तो कबीर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। कबीर कहते थे कि बिन मांगे जो मिले वो दूध है, मांगे मिले वो पानी, और कबीरा कहे वो रक्त है, जीमा खींचा तानी। तो वो कहते थे कि जो हमारे पास बिना मांगे हमारे स्वभाव और स्वधर्मा के हिसाब से काम आ रहा है वो बिल्कुल दूध है। और जो आप कह रहे हो अरे भाई ये मिल जाए तो मिल जाए, ये हो जाए, तो वो पानी है, क्योंकि उस जमाने में पानी की ऐसी कीमत नहीं थी, बिस्लरी उस जमाने में नहीं था। और जहां पे क्या है कि आप कह रहे हो ये चाहिए वो करा नहीं दूंगा, या वो करी नहीं दूंगी, तो जो खींचातानी हो रही है वो रक्त के समान डेप्लोरेबल है। तो ये तो एक बात हो गई। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि हमारा स्वभाव हम कैसे जाने, हमारा जो पैशन है उसको हम कैसे पहचाने, तो इसके लिए तीन बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये मैं आप लोगों को खुद ही एक तरह की कोई, जी, कुछ कोई कहना चाहते हैं? सिमरन जी भी दिख रही हैं। सिमरन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सिमरन रंगारी जी, कुछ आपका सवाल है क्या? नहीं है? नो सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक यू मैडम। और गोपाल पाटिल जी, आपका कोई सवाल है? नो सर। अच्छा अच्छा, आराम से देखो, ऐसा ना, अदरवाइज लेक्चर टॉक तो बहुत हो जाएंगी। मेरा ये जो चीज है ये अपने आप से कनेक्टेड चीजों को हम बात कर रहे हैं। और आपको अपने से कनेक्टेड कोई भी चीज अगर लगे तो आप मुझे कहीं भी रोक करके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बात हम सब लोग समझ चुके हैं कि हम ऐसा काम करें जहां पे हमारे लिए मंडे से फ्राइडे हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, चाहे वो मंडे मॉर्निंग हो, किसी भी दिन ब्लू नहीं है। हम खुद ही लगे पड़े हैं, जिसको कहते हैं स्वांताय सुखाय। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि अरे भाई इतनी तुम रामायण लिख रहे हो, ये कर रहे हो, इससे तुम्हें मिल क्या रहा है? तो उन्होंने कहा ये मैं स्वांताय सुखाय के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपने खुद की खुशी के लिए काम कर रहा हूं। क्योंकि होता क्या है कि जो आदमी एक बढ़िया काम करता है वो अपने आप में ही रिवॉर्ड होता है। और उससे अपने आप आगे जितनी आपको मनी मिलनी, जितनी फेम मिलनी है, फिर आपके क्या होंगे, सेटिस्फाइड कस्टमर्स होंगे बढ़िया, वो अपने आप आपका नाम आगे बढ़ाएंगे, अरे वाह जी भाई, गुरप्रीत जी हमारे इतने बढ़िया हैं, उनसे आप काम कराओ जी। अरे बेटिंग या गोपाल जी हमारे देखो बढ़िया बैठे हैं, टाई लगाए बिल्कुल शानदार चमक रहे हैं, इन्हीं से आप काम कराइए। तो इस तरह धीमे धीमे आदमी की ना प्रोफेशनल ब्रांड, पर्सनल ब्रांड, ये सब आगे ना बढ़ती रहती है। तो आगे अगर मेरे को टॉक वगैरह आपको दूंगा ना, मैं आपको एक एक चीजें लेके बताऊंगा धीमे से कि अपनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग कैसे करनी है, अपनी प्रोफेशनल ब्रांड कैसे चमकानी है। तो अदरवाइज आदमी जब शुरू में ज्वाइन करता है वो क्या होता है, कमोडिटी होता है। कमोडिटी होता है ना, जब आप शक्कर ले लीजिए, आटा ले लिया जी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक शक्कर आपकी आ रही है बजाज वाली, एक आ रही है बनिया के यहाँ से, दोनों के रेट में काफी अंतर होता है। एक नॉर्मल वाली अगर आपको मान लीजिए 50 रुपए किलो मिल रही है, वो मिलेगी 150 रुपए किलो। एक वो आईटीसी वाला आटा मिल रहा है, आशीर्वाद आटा, वो महंगा है। एक जो नॉर्मल मिल रहा है आटा, वो सस्ता है।
तो हर एक व्यक्ति को धीमे धीमे अपनी स्किल में डेवलपमेंट करना होता है, अपनी धीमे धीमे करके अपनी ब्रांड चमकानी होती है। तभी आप हायर लेवल के प्राइस और ब्रैकेट और हर तरह की चीजें उसमें आगे चल के अपने आप मिलती हैं। लेकिन जो एक कोर विषय निकल के जो आ रहा है वो ये है कि हमारा सही स्वभाव क्या है, उसको हम कैसे जाने और उस तरह का हम करियर कैसे पहचाने। जैसे बीएफएसआई सेक्टर ऐसा है कि जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है, बहुत ज्यादा इसमें अपार संभावनाएं हैं। और संभावनाएं जो हैं वो खाली इंडिया में ही नहीं है, ये पूरे विश्व में है। क्योंकि क्या है, इंडिया में जो हमारे पास ट्रेन्ड वर्कफोर्स है ना, जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन हमारा यूथ अगर मान लीजिए थोड़ा सा मिसगाइडेड होगा, उसको लगेगा हम क्या कर रहे हैं जी, क्या नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। तो आई रियली कॉम्प्लीमेंट यू एंड बीआईएफएस एकेडमी की, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को, यूथ को ट्रेन कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगे जाने से पहले मैं आपको छोटी सी क्विज देना चाहूंगा। क्विज ये है कि 3 शब्द बताइए ऐसे जो कि स्वभाव से जुड़े हुए हैं। मतलब अपना स्वभाव जानने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता है। और वो 3 चीजों में 2, पहले वाले जो नाम है वो लड़कियों के हैं और एक नाम है लड़के का। 2 जो गर्ल्स के नेम हैं मैं आपको लिख देता हूं, कहीं भी चैट है क्या? हाँ है। आर और वाई नाम की लड़की ढूंढिए और वी नाम का लड़का ढूंढिए। आर नाम की लड़की जिसका संबंध आपके स्वभाव से है, वाई नाम की लड़की जिसका संबंध आपके स्वभाव से है, और वी नाम का लड़का जिसका संबंध आपके स्वभाव से है। तो आप लोग इसी चैट में लिख सकते हैं। जैसे आर फॉर रश्मि, वाई फॉर युक्ति, है ना, वी फॉर विशाल, है ना। तो आर और वाई नाम की लड़की और वी नाम का लड़का जिसका संबंध हमारे स्वभाव से है, तो वो आप लोग कृपया चैट में लिखें। ये आप लोगों को शायद मिला नहीं ना, ये मेरे ख्याल में खाली गुरप्रीत जी के पास चला गया मैसेज मेरा। गुरप्रीत जी, आर यू जी देयर? सर, डायरेक्ट यस यस आई एम देयर सर। डायरेक्ट मेरे को आ गया सर। आप ही को आ गया ना? हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो ये आप चाहे तो चैट ऐसी कर दीजिए जैसे मैं हर एक व्यक्ति को चैट में लिख पाऊं। जी सर, एवरीवन कर दिया मैंने। जी। ठीक है सर, ठीक है सर। ये सबको विजिबल हो गया क्या सर? ये सर सबको विजिबल है। ठीक। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आप बताइए। आर नाम की रश्मि, आर फॉर रेनू, देर आर सो मेनी गर्ल्स विद द नेम ऑफ आर। तो कौन सी आर नाम की लड़की है जिसका संबंध हमारे स्वभाव से है? तुषार जी, आप बताएं कुछ, तुषार काले जी। सर नहीं, कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। अरे भाई, लड़कियों के नाम तो याद आने चाहिए, उसमें क्या भाई। एक ऐसे मैं कहीं पे टॉक दे रहा था, उसमें एक बंदे ने बिल्कुल सही जवाब दिया आर नाम का। फिर वो कहता है अरे सर वो मेरी गर्लफ्रेंड थी तो मुझे नाम याद था। चलिए मैं पहला बता दूं। आर, आर मतलब रुचि। जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आपको देखना है अपनी कि हमारी रुचि क्या है। RUCHI। रुचि से हमारा स्वभाव निर्धारित होता है। फिर दूसरी वाई नाम का क्या है? योग्यता। किसने बोला भाई? हु सेड राहुल इट? वही सर, योग्यता। हाँ, योग्यता। योग्यता ना? राहुल कुमार जी। ये सर। अरे वाह जी भाई, सर। बहुत बढ़िया, आपका आंसर आ गया। योग्यता, ये हमारे राहुल जी का सर आंसर हो गया। युक्ति, हाँ, युक्ति। युक्ति तो नहीं भाई, योग्यता ही है सही आंसर।
तो राहुल जी को धन्यवाद। राहुल कुमार भोई विनम्रता। है, विनम्रता। विनम्रता, विनय। विनम्र, विनय। विनय तो लड़का हो गया। वी नाम का लड़का कौन होगा? विश्वास। विश्वास किसने बोला? पवन जी ने? जी जी अरे बहुत बढ़िया भाई पवन जी, आपने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। तो पवन पटेल, पटेल जी का आंसर हो गया ये। तो देखिए तीनों चीजें आ गई हमारे पास, रुचि, योग्यता और विश्वास। तो जिसको हम कहते हैं पैफ मॉडल। पैफ मॉडल होता है, पहली चीज होती है पैशन, फिर होती है एबिलिटी, और फिर तीसरा होता है फेथ। तो हमें अपना स्वभाव जानने के लिए ये तीन वस्तुएं जाननी बहुत आवश्यक है कि हमारी रुचि क्या है, हमारी योग्यता क्या है और हमारा विश्वास क्या है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं भूपेंद्र सिंह चौहान जी? यस सर। बहुत बढ़िया। देखिए हमारे ऊपर जो पैनल है ना, उसमें जैसे इसका नाम और फोटो आ जाती है, मैं उन्हीं को थोड़ा सा परेशान कर लेता हूँ, तो इसी बहाने बात हो जाती है। तो व्हाट आई मीन टू से, हमें सबसे पहले देखना कि हमारी अंदर से रुचि क्या है। एक तो ये कि लोग कह रहे हैं कि जी तुम्हें तो कलेक्टर होना चाहिए, तुम्हें तो जी आईएएस बनना चाहिए, तुम्हें बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर होना चाहिए। अरे भाई दुनिया की बात अलग है, हमारी अंदर की रुचि क्या कहती है। हमें अगर मौका दिया जाए तो हम क्या काम करना चाहेंगे दिन और रात। और ये आप देखते हो, मान लीजिए आपने कोई बढ़िया फोटो तो खींची, अपनी सेल्फी डाली इंस्टाग्राम में, फिर आप देख रहे हो कि अरे वाह भाई ये लाइक आ रही, फिर आप उसको थैंक यू लिख रहे हो, फिर आप ये लिख रहे हो। तो देखते देखते 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, रात बीत गई। आर यू गेटिंग मी? तो ये क्या है? आपकी रुचि है। क्या आप उसमें लगे पड़े हो जिसमें आप टाइम का जो सेंस है वो भी आप भूल जाते हो? कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जैसे मुझे ना पढ़ाने लिखाने समय बड़ा मजा आता है। मैं गवर्नमेंट में काम कर चुका, कॉर्पोरेट में काम कर चुका, और बड़ी बड़ी पोजीशंस मिली, लेकिन मुझे जो पढ़ाने लिखाने में आनंद आता है वो किसी और चीज में नहीं आता। तो ये जानना आवश्यक है कि हमारी रुचि क्या है, हमारी उससे मैचिंग योग्यता है कि नहीं। अब मान लो हमारे मन में रुचि है बैंकिंग ऑफिसर बनना, लोन डिसबर्समेंट ऑफिसर बनना, राइट? उसके लिए हमें क्या चीज अच्छी होनी चाहिए? सलील जी बताएं। मान लीजिए लोन डिसबर्समेंट ऑफिसर हमें बनना है, तो हमें बेसिक क्या हमारे अंदर अच्छाई चीज होनी चाहिए? कम से कम मैथ आनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत। मैथ यस है या सर। एक्सेल शीट है, वो सब आना चाहिए। रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग, हाँ मैथ्स। लॉजिकल, या बिल्कुल बिल्कुल। और वो चीज अगर हमारे अंदर बेसिक योग्यता नहीं है, तो हम उस तरह की रुचि अगर रखेंगे भी तो भी हम उसको, अपने इस करियर को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। यस इसलिए सर। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक चीज है कि जो हमारी रुचि है उससे अलाइन हमारी मैचिंग योग्यता है कि नहीं। और उससे जुड़ा हुआ चीज होती है विश्वास। विश्वास क्या होता है कि जो दुनिया कुछ भी कह दे कि साहब ये नहीं कर सकता, लेकिन तब भी हमारे अंदर का जो दिया जल रहा है वो कहता है बॉस ये काम मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है ना? तो ये विश्वास होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको आपने हवा में उछाल दिया उसके पिता ने, तो बच्चा जब नीचे आता है तो हंसता है कि रोता है? हंसता है सर। हंसता है जनरली। तो उसको भी पता होता है कि नीचे भाई पिताजी हैं हमें पकड़ने के लिए, हमारा कुछ अहित नहीं होने वाला है। तो जिस व्यक्ति को अपने ऊपर और अपने थोड़ी सी जो हमारी बड़ी शक्तियां उनके ऊपर विश्वास होता है, तो दे आर इन अ पोजिशन टू टेक रिस्क, एंड दे आर ऑल्सो इन अ पोजिशन टू डू बिगर थिंग्स इन लाइफ। सो 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट: रुचि, योग्यता, विश्वास, पैशन, एबिलिटी एंड फेथ। तो इससे हमारा निकलता है स्वभाव। फिर इसके बाद हम खोज करते हैं स्वधर्मा की, कि इससे जुड़ा हुआ हमारा स्वधर्म क्या है। और अगर हम स्वभाव और स्वधर्मा से जुड़ा हुआ अगर हम ड्रीम बनाएंगे, तो देर आर मच मोर पॉसिबिलिटी कि वो ड्रीम हमारा जरूर फुलफिल होगा। एक कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर हम गोल खाली अपने लिए बना रहे हैं कि भाई आई मी माई सेल्फ माई फैमिली, खाली इसी का भला हो जाए, तो आपका गोल क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। और उसके लिए आपको जो बाहरी सहारा, जो और बड़ी तरह से जो ईश्वरीय सहायता मिलती है, वो आपको नहीं मिलेगी शायद। तो हमेशा हमें देखना है, एक बड़ा सा हमें गोल बनाना है। कि जैसे आपकी जो बीएफएसआई एकेडमी है, इसने गोल बनाया कि हमें यूथ को एम्पावर करना है, उनको स्किल डेवलपमेंट करना है, और इस सेक्टर में लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट हमें क्रिएट करना है। तो ये क्या है? एक बड़ा गोल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट चौहान साहब? यस यस सर। सर। यस चलिए सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत।
मिंटू जी भी दिख गई, बहुत अच्छी बात है। सो इन दिस वे वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज माय पैशन, एबिलिटी एंड फेथ, and in that way I will be able to have my right dream in life, and the dream also has to be aligned with, कहते हैं ना, स्वांताय सुखाय एंड ऑल्सो सर्वजन हिताय, जिसमें हम और लोगों के लिए भी कुछ और बढ़िया काम करने वाले हैं। then you will also get some invisible partners with you who will help you in going for extra mile and gaining additional heights of glory. अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि गिविंग सम एग्जांपल हाउ some of my former students, they achieved good distinction while living with this Subhav and Swadharma. As you know that I have been like director with Symbiosis, director general with Jaipuria, and many other institution I have headed in my life. So one of my student was there and he was very fond of drinking the tea. खूब वो चाय पीता था और उसको कहता सर अरे बस चाय पी लो मजा आ जाता है, और उसी में एकदम खुश रहता था। तो बताइए उस व्यक्ति ने क्या करियर चुना होगा? मान लो कहता है मेरा स्वभाव ही है चाय में रहना, चाय पीना, मजे करना, तो व्हाट करियर ही वुड हैव चोजन? एनी गेस? मिंटू जी आप चाय पीती हैं? सर टी टेस्टर। टी टेस्टर? अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली तो बजानी पड़ती है, बहुत बढ़िया। इन्होंने एकदम, आवाज नहीं आ रही है आपकी। लेकिन देखिए मिंटू जी ने एकदम सही आंसर दे दिया। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? सर बीच में कट हो गया था। यस सर। अच्छा आप सुनाई दे रही है क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें ऐसा है, मिंटू जी ने जैसे राइटली एकदम उसको गेस कर लिया। उन्होंने कहा कि वो बंदा टी टेस्टर बन गया होगा, और ये बिल्कुल सही आंसर है। वो टाटा टी में बढ़िया एकदम टी टेस्टर बना हुआ है। तो कहीं दार्जिलिंग में चाय पी रहा है बैठ के, कहीं श्रीलंका में बैठ के अपना चाय पी रहा है, तो उसको चाय पीने में मजा भी आ रहा है और चाय पी करके अपना प्रोफेशन भी कर रहा है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, मैं लिख के देता हूं आपको, इसका मतलब होता है पैशन टू प्रोफेशन, कि आपने अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। तो उस बंदे को कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि साहब अभी हमारा वीकेंड नहीं आया और ये हो गया, देखो बॉस ने ज्यादा मुझे श्रीलंका भी भेज दिया और मैं तो दार्जिलिंग में चाय पी के खुश था। तो इस तरीके से अगर हम कुछ कार्य कर सकते हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसे एक लड़की थी, जैसे एग्जांपल तो मैं बहुत सारे दे सकता हूँ। देयर वाज अनदर गर्ल हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, जैसे सभी लड़कियां आमतौर पे खुश होती हैं शॉपिंग करके, तो उसको शॉपिंग का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो वो क्या बन गई होगी बताइए जरा? सर मॉडल। मॉडल? मॉडल तो बिल्कुल बन सकती है वो, लेकिन मॉडल में तो फिर क्या, मॉडलिंग एक अलग तरह का उसमें शॉपिंग कहाँ उसको मिलेगी? वो तो अपनी जैसे पर्सनैलिटी है, ब्यूटी है, उसके बेसिस पे वो काम करेगी, लेकिन उसको रोज शॉपिंग कहाँ करने को मिलेगी? अब मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? दुर्गादास जी आप बताएं, रीना जी आप बताएं। मुझे कुछ और लोग भी दिखने लगे भाई, बहुत अच्छी बात है। हर्षिता जी? सर आई थिंक मार्केटिंग, शॉपिंग वगैरह आई थिंक। हाँ हाँ, मार्केटिंग शॉपिंग, लेकिन उसमें क्या क्या कर रही होगी बताइए? एडवाइस, शॉपिंग की एडवाइस वगैरह आई थिंक। शॉपिंग एडवाइस दे रही होगी बहुत अच्छी बात है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कामिनी जी आप बताएं, उस लड़की को जो शॉपिंग का बड़ा शौक था वो क्या कर रही होगी बताइए? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आजकल प्रोफेशन चला है, बताइए क्या है वो? सेल्स। अरे सेल में तो वो बेचारी सेल करेगी ना, वो तो उसमें मजा थोड़ी आ रहा होगा, वो तो फैशन खरीद। डिजाइनर। हाँ, सर ब्रांडिंग प्रमोशंस। नो नो नो, तुम लोग की भाई जानकारी लगता फैशन कम है। डिजाइनर सर।
नो। और बताइए, जल्दी जल्दी गेस मेकअप करिए। आर्टिस्ट। हाँ। मेकअप नो नो नो, आर्टिस्ट। नहीं 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 भाई, बिल्कुल उसमें तो काम करना पड़ेगा ना। उसको तो खाली शॉपिंग डिजाइनर। खरीदने से मतलब है। सर डिजाइनर। हाँ। जी मैम। डिजाइनर। डिजाइनर। प्रोफेशनल शॉपर, देखिए ये चेरल जी ने बड़ा अच्छा आंसर दिया है। तो प्रोफेशनल शॉपर जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिस्ट्री शॉपर। फैशन इन्फ्लुएंसर जो है, मिस शुक्ला ने आंसर दिया है। तो ये बहुत कुछ इससे जुड़ा हुआ आंसर है, उसका नाम है मिस्ट्री शॉपर। होता क्या है, आजकल जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं ना, जैसे शॉपर स्टॉप हो गया या जियो मार्ट हो गया, इस तरह के, इनको ये देखना होता है कि हमारे अलग अलग दुकानों में जब कस्टमर जाता है तो उसके साथ ट्रीटमेंट कैसा होता है। कि मान लो वो गया, उसको कोई देख ही नहीं रहा है, या जो हाईएस्ट सेलिंग आइटम, मान लो लड़कियों की आमतौर में हाइट 5'1", 5'2" इस तरह होती है, जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट। तो सबसे ज्यादा जो महंगी चीजें होती हैं वो उस हाइट पे होनी चाहिए, जिसे लड़की तुरंत आसानी से देख ले कि हाँ भाई, ये महंगी वाली चीजें ये हमारी नजर में आ गई। नहीं तो अगर महंगे वाले आइटम अगर बहुत ऊंचे रखे होंगे तो वो नहीं देख पाएगी, या बहुत नीचे होंगे तो उसको परेशानी होगी। फिर अगर मान लो वो गई, उसने कहा मेरा तो साइज मीडियम है, वहां पे स्मॉल लगे हुए हैं, तो किसी से बोलेगी अरे भाई जरा मीडियम ले आओ। और वो दूसरी लड़की जो वहां पे सर्व कर रही है, वो कहेगी देखो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं, हमें परेशान करते हैं जो है। तो सर्विस ओरिएंटेशन वहां पे कैसा है? मान लो हम साइज बदल के पूछ रहे हैं, तो साइज का रिस्पांस कितनी देर में है? स्टोर की जो क्लीनलीनेस कैसी है? एक कस्टमर फ्रेंडलीनेस का एनवायरनमेंट है या नहीं है? आर यू गेटिंग मी? तो इन सारी चीजों की क्वेश्चनेयर सी होती है जिसको वो लोग भरवा के देखते हैं। तो वो ये देखेगी अपना, उसको जो जो पसंद आएगा अपना खरीद लेगी और चली आएगी। और हर एक विजिट के उसको 4 लाख रुपए मिल जाते हैं, 4 लाख रुपीज पर विजिट। तो मजे से अपना जाती है, शॉपिंग करती है, वीक में एक दिन निकलती है अपना, तो 16 लाख रुपए उसको मिल जाते हैं महीने में, और जितना सामान खरीद लाई वो उसका अपना। तो एक तरीके से शॉपिंग को उसने अपना क्या कर लिया, अपना प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया। मजेदार है ना प्रोफेशन, भूपेंद्र सिंह जी? यस सर। है ना? यस। तो हमने अभी आपको खाली 2 एग्जाम्पल ऐसे दिए कि जहां पे हाउ यू कैन कन्वर्ट योर पैशन इनटू प्रोफेशन। और इस तरह की बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जब आप अपने स्वभाव और स्वधर्मा को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अरे यार ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। कामिनी जी सोचेंगे अरे भाई ये तो मैं भी कर सकती हूँ, ये इसमें मेरे मजा आता है। सीमा चौहान जी सोचेंगी अरे भाई ये काम करने में मजा आता है, ये हम कर लें। रुशिता जी कहेंगे हम ये करना चाहते हैं। खुशबू जी कहेंगे मुझे ये करना है। आर यू गेटिंग मी? सुशील चौहान जी कहेंगे अरे ये काम करा जाए तो हम 24 घंटे काम कर सकते हैं। तो हमें इन्हीं चीजों को थोड़ा सा देखना है कि क्या चीज ऐसी जहां पे हमें मजबूरी का सौदा नहीं लग रहा है, और हमारा जहां पे दिलो दिमाग से हम काम को कर सकते हैं। और यही होता है असली ड्रीम को पहचानना। और जब एक बार असली ड्रीम आपके सामने आ गया ना, तो आपके पास अपने आप एस्पायर आप करोगे और अपने आप उसको आप अचीव करोगे। इसके बाद एक और बड़ा अच्छा सा मैजिक होता है कि एक होता है डूइंग और हैविंग, कि तुमने ये करा और ये मिला। लेकिन डूइंग के ऊपर की जो जर्नी होती है वो होती है बीइंग, कि तुम हो क्या असली में। आर यू बीइंग रिस्पॉन्सिबल? अगर तुम रिस्पॉन्सिबल हो तो रिस्पॉन्सिबल डूइंग अपने आप होगी, और रिस्पॉन्सिबल हैविंग अपने आप हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी? इफ यू आर बीइंग लविंग तो लविंग एक्शन अपने आप होंगे, और लविंग आउटकम अपने आप पैदा हो जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है तुम बाद में कभी चर्चा करेंगे कि अपनी डूइंग से बीइंग की तरफ कैसे बढ़ा जाए। लेकिन आज का जो हमारा मेन एजेंडा था वो ये था कि ड्रीम, एस्पायर, अचीव एंड क्रिएट अ लाइफ यू लव। मेनी टाइम वी आर लिविंग अ लाइफ विच वी डू नॉट लव। जैसे एक मूवी आई थी, कौन सी थी वो, जब वी मेट, जिसमें वो लड़की थी गीत नाम की, शायद आपको याद होगा। वो कहती थी आई एम माई ओन फेवरेट, मैं अपनी खुद की फेवरेट हूं। तो क्या हम इस भाव को अपने अंदर नहीं ला सकते कि हम अपने खुद के फेवरेट बने? कोई पसंद करे या ना करे जी, ऐसी की तैसी की फर्क पैंदा। और अपना मजे में अपने को प्रेम करते हुए, अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए, हम ये देखें क्या काम करने में हमें मजा आ रहा है, उसी तरह के हम गोल बनाएं। ये भी नहीं बहुत बड़ा हम गोल बनाए कि हमें बैंक का एमडी या चेयरमैन बनना है। हमारे सामने जो चीज दिख रही है उससे रिलेटेड हम गोल बनाएं, कि बीएफएसआई करने के बाद क्या और इसके बाद क्या। अगर हम 2 या 3 स्टेप तक का भी गोल रखते हैं ना, ये हमें एनर्जी देगा।
अगर हम बहुत ऊंचे ऊंचे गोल बनाएंगे कि जी हमें तो 10,000 करोड़ का आदमी बनना है, अरे बहुत दूर की बात है। और ये भी समझना जरूरी है कि हम 10,000 करोड़ का करेंगे क्या। क्योंकि मेरे कई लोग ऐसे हैं हमारे विश्व भर में, हमारे स्टूडेंट फैले हुए हैं, मैं उनको देखता हूँ। कुछ लोगों के मान लो $10 बिलियन भी उनके पास हैं, लेकिन तभी भी अक्सर ही उनका कभी फोन आता है, सर आई आई थिंक आई एम वेरी मच फेड अप विद माई लाइफ, नाउ आई जस्ट थॉट टू से फाइनल गुड बाय टू यू। तो मैं बस कूदने वाला हूँ, 100वीं मंजिल पे कहीं खड़ा हूँ और जा रहा हूँ। तो ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। तो मैंने पहले तो उसको 2-4 बार समझाया, अरे नहीं भाई ये नहीं वो नहीं। फिर मैंने उसका, भाई मेरे को मत फोन किया कर ऐसे मुद्दे में, क्योंकि मान लो कहीं कूद ही गया तो अंत में ढूंढेंगे भाई हु इज द लास्ट पर्सन ही कॉल्ड। उसमें निकला भाई इंडिया के प्रोफेसर गुप्ता, उनको कॉल किया। तो व्हाट आई मीन टू से, ना तो मनी आपको बहुत हैप्पीनेस दे सकती है, ना पोजीशन दे सकती है, ना बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दे सकती है। वो आंतरिक जो खुशी आती है वो आपके अंदर इनर भाव से आती है। उसके लिए थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, ये सब चीजों की बहुत जरूरत है, जिससे कि हमारा जो गोल है वो राइट गोल बने। अगर हम अनरियलिस्टिक गोल बनाएंगे विच इज नॉट अलाइंड विद माई स्वभाव एंड स्वधर्मा, तो हम हमेशा स्ट्रगल ही करेंगे। तो इट इज लाइक दिस, गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन विद द रेस्टलेस माइंड। आजकल के लोगों देखिए, बच्चे हैं अपना लगे हुए फोन पे, अरे ये उसका व्हाट्सएप आ गया, ये ब्लू टिक हो गया। अरे भाई ब्लू टिक हो गया, तुम उसके गुलाम हो क्या कि तुम्हें तुरंत उसका रिप्लाई करना है। जैसे मैं हूं, आमतौर में अपने व्हाट्सएप खाली दिन में 4 बार चेक करता हूं। मैं भाई इसका गुलाम नहीं हूं। इसीलिए इस तरह की मैंने अपनी जॉब चुनी हुई जहां पे मेरे को फ्रीडम है। डिलिबरेटली आई एम नॉट टेकिंग पोजीशन एज वाइस चांसलर एंड प्रेसिडेंट एनी मोर, क्योंकि मुझे देखना है मेरे लिए उचित क्या है। और अपने बैंक बैलेंसेस में और जीरो ऐड करने से कोई बहुत बड़ा भला नहीं होता है। क्वेश्चन इज दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ वी आर लिविंग। तो एक और मेरा टॉपिक होता है, इसका नाम होता है बैलेंस स्कोर कार्ड ऑफ लाइफ। जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड ऑफ बिजनेस होता है ना, जिसमें पहले होता है लर्निंग एंड ग्रोथ, फिर होता है इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, फिर होता है कस्टमर डिलाइट, और फिर होता है फाइनेंशियल आउटकम। उसी तरीके से हमारे इंडिविजुअल का बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है। पहली चीज हमारी फिजिकल हेल्थ, फिर होती है मेंटल हेल्थ, फिर होता है हमारा कनेक्शन इन माई कम्युनिटी विद माई फैमिली, फिर होते हैं प्रोफेशन, फिर होता है लिगेसी गोल। आर यू गेटिंग मी। इस तरह से हम अपने हिसाब से अपना हम बैलेंस स्कोर कार्ड वाला गोल बनाएं। और एक ही तरफ भागना जी, हम तो खाली जिम में जाएंगे जी, बॉडी बनाएंगे। अरे भाई तो तुम्हें बॉडी बना के और पूरा क्या मिलेगा, यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट मे बी सम पीपल, बट व्हाट विल हैपन, इट विल हैव इट्स ओन इम्प्लीकेशंस। आजकल आप देखिए बड़े बड़े यंग लोग हैं, बड़ी बॉडी बना रहे हैं, अचानक हार्ट फेल हो रहा है, खत्म हो रहे हैं। उसमें क्या रीजन है कि जो हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो इतनी नहीं इंप्रूव हुई, और आपने सप्लीमेंट ले लेकर के वो सब कर लिया। तो हर चीज की लाइफ में बैलेंसिंग की आवश्यकता है। तो मेरी पहली सलाह आप लोगों को केवल ये है कि आप लोग ये देखें हमारा रुचि योग्यता विश्वास क्या है, उससे निकालें स्वभाव और स्वाधर्मा। फिर उसमें देखें कि हमें क्या काम करने में असली में मजा आ रहा है, और उसमें जुड़ जाएं। और मेरे ख्याल में सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। मैंने आपको ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल दिए, एक मैंने आपको टी टेस्टर वाला एग्जाम्पल दिया, एक मैंने आपको मिस्ट्री शॉपर का एग्जाम्पल दिया। अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे कन्वर्सेशन में, तो मैं आपको और भी इस तरह की और अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरीज और इस तरह के जो मोटिवेशनल स्टोरीज हैं वो हम आपको शेयर करते रहेंगे। और इन द मीन टाइम आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप वो पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं तो प्रोफेसर हूं, मैं तो बोलता रह सकता हूँ। आप मुझसे 2 घंटे बुलवा लो, मैं बोलता रहूंगा, बहुत मसाला है मेरे पास। तो गुरप्रीत जी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। किसी का जी कोई सर। क्वेश्चन हो तो आप सर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, राइट। कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग योर ड्रीम्स, एवरीथिंग जो भी सर ने एक्सप्लेन किया आपको उसके बारे में। सुशील, भूपेन, कैलाश, नवनीत, गोपाल, राहुल, मिंटू, सिमरन। नो सर, नो क्वेश्चन एट ऑल। बोलिए सर, राहुल जी बोलिए। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ। कोई क्वेश्चन देखिए एक ही चीज में मीन्स होता है, या क्वेश्चन। तो या तो सब समझ में आ गया या बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। तो राहुल जी आपको सब समझ में आ गया। सर फिलहाल तो यही समझ में आया कि मेरा पैशन को ही फॉलो करना है, और जो ग्रोथ मेरे को इसके थ्रू मिलेगा उसी को अचीव करना है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड।
कलश जी, आपका क्या टेक अवे है? सर जो अपने को मतलब जिस चीज में अपने को नॉलेज हो गेन हो, मतलब हर चीज अपने को काफी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और अच्छे से अच्छा बिजनेस, मतलब कोई भी अगर जिसमें अपने को ज्यादा वो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जिससे मेरे को अंदर से एक शांति का भाव हो, हमें जिसमें अच्छा लगे, हमें उस तरह का गोल अपना बनाना चाहिए। और ना कि अभाव और प्रभाव में, बल्कि स्वभाव और स्वधर्म में हमें काम करना चाहिए। बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा। देखिए, होता क्या, हर एक व्यक्ति के अंदर एक अलग तरह का बीज होता है। जैसे मान लीजिए, आपने देखा होगा कि जैसे एप्पल है। एप्पल के फल में कितने बीज होते हैं? अगर आपको कहा जाए कि भाई चाकू है, काट के देख लो और बताओ कितने बीज हैं, तो कितने आप कैसे बता पाओगे? आप बता दोगे 3 4 5 बीज होते हैं आमतौर पे, राइट? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, बताओ एक बीज में कितने एप्पल हैं, क्या आप बता सकते हो? बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, क्योंकि एक बीज से एक पूरा एप्पल का पेड़ बनेगा। और उस पेड़ में क्या होंगे? खूब सारे एप्पल बनेंगे। उस एप्पल के फिर एप्पल गिरेंगे, उसे एप्पल का जंगल बन जाएगा। उस जंगल में एप्पल ही एप्पल निकलेंगे। तो एक बीज के अंदर वो पावर है कि पूरे एप्पल का जंगल बना सकती है। इन द सेम वे, आज तुषार काले जी बैठे हैं हमारे, कलश जी बैठी हैं, गुरप्रीत जी बैठे हैं, भूपेंद्र जी बैठे हैं। वो उनके अंदर किस चीज का बीज है, वो कहाँ तक चमकेंगे, ये नोबडी कैन टेल एट दिस मोमेंट। ये या मिंटू जी बैठी हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम अपने आप के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारा विश्वास हमारे बारे में क्या है, और हम कितना अपने बारे में सोच रहे हो, कितना औरों के लिए भी हम सोच रहे हैं। क्योंकि औरों के लिए अगर आप सोचोगे और करोगे, तो आप महान अपने आप बनते चले जाओगे। अगर खाली आई मी माई सेल्फ को सोचोगे, तो खाली छोटा छोटा मिलेगा। आर यू गेटिंग मी? लेकिन उस एप्पल का बीज अगर पता लग गया कि हमारे अंदर एप्पल टाइप की संभावना है, तो कहाँ लगना चाहिए? वो लगना चाहिए आपको कश्मीर में, हिमाचल में, या जयपुर में? कहाँ लगना चाहिए? कश्मीर में। कश्मीर में। बिल्कुल, 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 कश्मीर में लगो, बढ़िया फूलो फलोगे। और अगर तुम कोकोनट के बीज हो, तो कहाँ लगना चाहिए? साउथ साइड केरला, हाँ, आंध्र। केरला लग जाओ, गोवा लग जाओ, बढ़िया अपना। तो ये जानना जरूरी है कि हमारे अंदर बीज किस चीज का बैठा हुआ है। उस तरीके से अगर हम अपना आगे का स्वभाव स्वधर्मा प्लान करेंगे, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। और उसमें ये भी है, मान लो अगर अभी हमने सोचा है कि हमें मान लो जॉब हासिल करना है, बीएफएसआई इंडस्ट्री चमक रही है, वो करना है। ठीक है, आप मेहनत करो, ये सर्टिफिकेशन करो, बैंक में जॉब ले लो। लेकिन अपना जो स्वभाव है उसको मत भूलो। मान लो एक तुमने स्टेप पार किया, जॉब लिया, अपने उस लेवल की फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करी। उसके बाद ये पूछते रहो, मैं हूं कौन, हु एम आई, मैं बीच किस चीज का हूं। फिर अगली राह पे चलो। क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी, एक तरह से क्या होता है, फिजिकल हेल्थ चाहिए, फिर हमें चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ, फिर हमें चाहिए इकोनॉमिकल हेल्थ। आर यू गेटिंग मी? इकोनॉमिकल हेल्थ के बाद यस सर। आती है सोशल हेल्थ। लास्ट गोल होता है स्पिरिचुअल। तो हमें धीमे धीमे करके एक एक स्टेप हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और लेकिन सबसे बड़ी कुंजी क्या है? सेल्फ लव। अपने आप को एक्सेप्ट करना, द वे वी आर एंड द वे वी आर नॉट, लिविंग द लाइफ यू लव। और लव के लिए क्या पहले जरूरी है? हम अपने आप को प्रेम करें। भाई देखो, आज की डेट में कुछ चीजें ऐसी जो आप नहीं बदल सकते हो। लाइक अपने पेरेंट्स को बदल दोगे क्या? अरे भाई ये पसंद नहीं आ रहा है, ये तो थोड़े नाटे से हैं, या ये काले हैं। या अपनी स्किन, कलर ऑफ स्किन को बदल दोगे? काश मैं और गोरी होती, काश मेरे हेयर ब्लॉन्ड होते। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग विच इज नॉट इन माई कंट्रोल, आई शुड नॉट बॉदर अबाउट इट। आई शुड ओनली बॉदर अबाउट दोज थिंग विच आर इन माई कंट्रोल। और धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ें। जैसे अभी हमें कार्य करना, बीएफएसआई वाला प्रोग्राम करना है, तो उसको हम पूरी शिद्दत से करें। फिर मान लो बैंक में नौकरी मिलती है, नौकरी, उसको हम शिद्दत से करें। लेकिन कहीं ना कहीं टाइम निकाल के हम अपने बारे में जरूर सोचें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा माइंडफुलनेस का प्रयास करें। तो उससे आगे का रास्ता और अच्छा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और पूछिए सर।
मोहम्मद दानिश जी, जी सर। एनी क्वेश्चन सर? नो सर। नो आपको सर। मेरी टॉक टॉक से कुछ, क्या आपके लिए टेक अवे क्या है सर? क्या आपने क्या सीखा? जी सर, मुझे तो लगता है कि जैसे अपने आप पर अपने को खुद को भरोसा होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये या फिर मुझे जॉब लगती है तो फिर आगे और मुझे पढ़ना चाहिए, या मेरे अंदर कौन सी स्किल है वो ढूंढना चाहिए। बहुत बढ़िया। अपने हमारे अंदर कौन सी रुचि है वो हमें ढूंढनी चाहिए, उसके हमारे अंदर कौन सी योग्यता है वो हमें ढूंढनी चाहिए, है ना? और उसमें जी आगे सर। बढ़ना चाहिए विद टोटल विश्वास। जी सर। और करंट के प्रति भी हमेशा ये सोचना चाहिए, यस आई एम वेरी ग्रेटफुल। वो थ्री इडियट मूवी में नहीं बार बार कहता ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल क्या है? कि हमारे करंट से हमें कोई शिकायत नहीं है। बिकॉज इफ यू ऑलवेज हैव समथिंग, लड़ाई हो रही चल रही है, अरे ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो आपकी टोटल एनर्जीज अलाइन नहीं होती हैं। The lot of your potential energy is getting wasted in fighting the negativity. तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। रुशिता जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? हर्षिता जी? सुशील चौहान जी? कामिनी जी, एनी क्वेश्चन? रीना जी? नो सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन हाँ था। जी, पूछिए सर। सर व्हाट इफ सम पर्सन नॉट अवेयर अबाउट देयर पैशन? हाँ बिल्कुल, होता है। पैशन के लिए क्या है, हमें उसको लगातार ढूंढना चाहिए। धीमे धीमे आपको पता लगेगा कि ये काम करने में तो बड़ा मजा आता है। तो अगर कई बार ऐसा भी होता है, दो तीन अलग अलग कामों में मजा आता है, ये भी अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, एक काम पकड़ लो, उस पर काम करना शुरू करो। तो इसमें वैदिक मॉडल होता है जिसको कहते हैं नेति नेति। नेति नेति का मतलब होता है, अरे ये नहीं, अच्छा ये है, ये भी नहीं। तो धीमे से वो चीज पता लगती है कि हमें चाहिए क्या लाइन। तो मेरी सलाह ये कि आप लोग निराश ना हो, अपने आप को एक्सप्लोर करते रहें धीमे धीमे, और कहीं ना कहीं रास्ता हमें मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और कभी भी अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं। जैसे आज मैं कहीं पे था, मेरे को कोई जगह ही नहीं मिली, मैं कहाँ से टॉक दूं, तो मैं कहीं पे बैठा हुआ था, मैंने यहीं पे अपना चालू हो गया। मेरे पीछे बैकग्राउंड उल्टा सीधा सा है, लेकिन कहता की फर्क पैंदा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि मेरी बात में, मेरी जो नॉलेज है उसमें दम होनी चाहिए। बैकग्राउंड यस। से की फर्क पैंदा। आर यू गेटिंग मी? और एक टाइम ऐसा था, मैं इन सब चीजों का बड़ा कॉन्शियस होता था कि मैं दिख कैसा रहा हूँ, मेरी जो है ना बाल कैसे हैं, इन सब चीजों में भी बॉदर करता था। नॉट एनी मोर। जैसे जैसे आंतरिक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इन चीजों के ऊपर रिलायंस आपकी कम हो जाती है। जैसे मैंने 24 ईयर्स तक आई वॉज कीपिंग अ बियर्ड, आपने मेरी जैसे फोटो भी देखी होगी, वो दाढ़ी वाला था मैं। लेकिन मैं इस बार हिमालय गया, वहां मैंने हुए मैं एक्सरसाइज करी, तो उसमें लगा कि भाई मेरी जो आइडेंटिटी वो दाढ़ी से बड़ी लिंक हो गई। जिस बोले प्रोफेसर गुप्ता कहें, अच्छा वो दाढ़ी वाले, तुमने कहा इस बार उड़ा देते हैं भाई, ऐसे भी रह के जीते हैं थोड़े दिन, उसमें क्या है। तो इसलिए अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीनी चाहिए मेरे हिसाब से, इससे मजा आता है। और अपने किसी भी ड्रीम से डरिए मत। अगर आपके अंदर कोई भी कामना या डिजायर आ रही है, तो आप मान के चलिए ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने, जीसस, जो भी जिसको भी आप मानते हो, उसने वो चीज आपके लिए सुरक्षित कर ही रखी है। तभी आपके मन में वो डिजायर पैदा हुई। जैसे मोदी जी थे, उनके मन में कभी ना कभी डिजायर रही होगी, भाई हमें बनना है प्रधानमंत्री, तो वहां कहाँ कहाँ से चलते चलते यहाँ पहुंच गए। तो हम सबके अंदर जो बेसिक डिविनिटी जो बैठी हुई है ना, वो सबके अंदर एक है। चाहे वो कलश जी हो, चाहे वो तुषार जी हो, चाहे मैं हूं, हर एक के अंदर क्या है, कॉन्शियसनेस एक ही है। तो उस कॉन्शियसनेस को भी आप लगातार मजबूत कर सकते हैं बाय डूइंग मेडिटेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। सीमा जी, एनी क्वेश्चंस?
तुषार जी, आपका आंसर मैंने दे दिया ना शायद? हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू। सर पैशन को प्रोफेशन बनाने में जो डिफिकल्टीज आती है, जैसे कि सर किसी को फोटोग्राफी करना रहता, किसी को ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना रहता, या फिर किसी को अपना बिजनेस करना रहता, तो सर ये सब चीजों में मतलब इनकम तो है, लेकिन सर कैसा है, घर वालों का बोलना रहता कि स्टेबल इनकम जरूरी है। तो सर ये सब चीजों को मतलब अवॉइड कैसे करते, मतलब एक, क्योंकि हमको तो पैशन को फॉलो करना है, पैशन को ही हमारा प्रोफेशन बनाना है, तो ये सब चीजों को मतलब ओवरकम कैसे करना सर? ठीक है, मैं इसमें आपको खाली एक ही छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपने कर्नल सैंडर्स का नाम सुना है क्या, जो केएफसी के फाउंडर हैं? केंचुकी फ्राइड चिकन नामक एक संस्था है। केएफसी का नाम सुना है सर। हाँ, तो सुना है। हाँ, तो केएफसी के फाउंडर थे कर्नल सैंडर्स। तो ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, और ये करीब 65 साल की उम्र में रिटायर हुए, 65 में। तो पत्नी ने इनको ताना दिया कि भाई, तुम तो पहले भी किसी काम के नहीं थे, अब और रिटायर होके आ गए और हमारा तुम दिमाग चाटोगे। तो इनको पता नहीं कैसे थोड़ी बेइज्जती सी लग गई। तो इन्होंने फिर ढूंढा कि भाई हम क्या कर सकते हैं। उनका, भाई मेरे को तो एक ही काम आता है, मैं चिकन विकन बना लेता हूँ। तो उन्होंने वही बना के अपना बेचना चालू कर दिया। और शुरू में थोड़ा कह दिया, साहब हम इसमें स्पेशल मसाला डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उससे समाओ उसकी एक गुडविल सी बन गई। और आप खुद ही जानते हैं कि वो चीज कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आर यू गेटिंग मी? वो एक से दो, दो से चार, और चार के 4 करोड़ वो अपने आप होते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आप शुरू से कहोगे हमें बहुत बड़ी ग्लोबल चीज बनानी है, तो शायद ना बन पाए। लेकिन हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कहते हैं मौके पे चौका लगा रहे हैं, मौके पे छक्का लगा रहे हैं। जैसे वो बंदा नहीं था रिंकू सिंह, वो कैसे चमक गया। यस सर, आई आईपीएल देखा में था वो एक मैच सर। हाँ बिल्कुल, उसने एक आध जगह चमकाया, और कहाँ से कहाँ इंडिया टीम में आ गया। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि हम बड़ी बड़ी चीज सोचें और सोचते ही रह जाएं। हमें मान लो जो चीज अच्छी लग रही है उसको लेके हम एक्सपेरिमेंट करें। और आप देखो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, मान लो किसी बंदे ने एक सैलून की शॉप खोल ली, और इतना बढ़िया वो काम कर रहा है कि पूरे शहर के लोग आ रहे हैं, उसके यहाँ महीनों की वेटिंग लग रही है। वकीलों को देख लो, वकील क्या है कि लोग कहते हैं यार ये वकील बन गया। कुछ वकील ऐसे जिनका 2-2 महीने का टाइम मिलता है। आर यू गेटिंग मी? वो दिलीप छाबड़िया था आपका उधर, उसने जो कार थी पुरानी उनकी डिजाइनिंग उसने काम चालू कर दिया। तो प्रोफेशन जो आपका पैशन से कन्वर्ट होता है, उसमें थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये नॉर्मल टाइप के प्रोफेशन नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप उस पर विश्वास से जुटे रहोगे, और कोई आदमी मान लो ये क्वालिटी दे रहा, तुम उसको ये क्वालिटी दे रहे हो बिल्कुल चमकती हुई, तो लोग धीमे धीमे करके जो कस्टमर है वो माइग्रेट होंगे। और आप उनको हर बार एक एक्स्ट्रॉर्डनरी अगर क्वालिटी दोगे तो क्या होगा? फिर वो कस्टमर लॉयल्टी होगी, फिर कस्टमर रेफरल मिलेगा आपको, एंड द होल थिंग विल गो टू अ नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर। तो ये मैं सलील जी कहना चाहूंगा कि अपने किसी भी आंतरिक जो गुण है, आंतरिक जो आपको योग्यता से जो मिला हुआ है, उसको आप डिस्काउंट ना करें। मान लीजिए आप दिन में जॉब कर भी रहे हैं, आप करिए। लेकिन जब आप शाम को आते हैं, तब आप उसके ऊपर, अपने पैशन के ऊपर काम करिए। जैसे लोग कहते हैं कि साहब आदमी महान जो है वो 9 to 5 में नहीं बनता है। जो दिन में काम कर रहे हैं ना 9 to 5, लेकिन होता है कि तुम 5 to 9 क्या कर रहे हो। कि शाम को आ गए जी 5 बजे, उसके बाद अगले दिन 9 बजे तक क्या कर रहे हो। उससे आप और महान बन सकते हो। और मन मन में अगर ड्रीम है जी हमें करोड़पति बनना है, ये बनना है, तो हर चीज संभव है। मैं तो फैकल्टी मेंबर के लिए प्रोग्राम करता हूँ जिसका नाम होता है टीचर टू गुरु प्रोग्राम। कि भाई टीचर से गुरु कैसे बनना है। उसमें कई लोग होते हैं कहते हैं कि साहब समाज सम्मान नहीं देता है। तो मैं कहता हूँ समाज की क्या जरूरत, तुम अपने आप को सम्मान देते हो क्या? या हमें तो इतनी सैलरी मिलती है, किसने कहा भाई तुम इतनी सैलरी लो? यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट योर सरस्वती जी इंटू लक्ष्मी जी। यानी हाउ टू कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू मनी, यू शुड नो दैट। राइट अ बुक, राइट अ यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट चैनल, डू कंसल्टिंग। आर यू गेटिंग? डेवलप अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, हु स्टॉप्स यू? आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या सलील जी? यस सर। तो अपने आप को, हमें खुद ही को एम्पावर करना है, एंड देन वी कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। दैट ओके सर, सलील जी? यस सर। आपका कुछ और भी सवाल है, आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं, बताइए।
मेरा या नो सर, आई एम सेटिस्फाइड. अच्छा, Yes, चलिए sir. ठीक, चलिए ठीक, ओके. एनी मोर क्वेश्चंस? सीमा जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? सर जी. वन क्वेश्चन. सर अभी आपने बताया कि वर्क लाइफ और पैशन हम दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कैसे, मतलब. देखिए, व्हाट आई वुड लाइक टू से, आप अगर बोलो वर्क अलग है और लाइफ अलग है, तो पहली बात तो ये सोचना ही गलत है. नहीं बिकॉज वर्क, सर, मतलब वर्क मतलब जो भी हम प्रोफेशनली जो भी करेंगे वो, और पैशन मतलब जो भी हमें पसंद होगा अच्छा, वो वो आप कह रही हैं. ओके ओके ओके, मैं जो. समझ गया. तो आप ये कह हाँ. रही हैं कि हमें जो जॉब करना है, जॉब तो हमारी पसंद का नहीं है, वहां पे हम जा रहे हैं खाली पैसे के लिए, राइट? और बाकी आकर के शाम को हम जब काम करेंगे या बाकी अपने टाइम में काम करेंगे, वो करेंगे पैशन वाला. इज दैट राइट? हाँ ये सर. यही बात है ना मंटू जी? तो उसमें देखिए, हाँ सर. पहली सलाह तो ये है कि अगर आपके अंदर कोई पैशन है, तो उस पैशन में ये समझना पड़ेगा कि हाउ इन दैट पैशन हाउ somebody विल बी विलिंग टू गिव यू मनी. क्योंकि आपके अंदर जो योग्यता है उसका कोई ना कोई खरीदार होना चाहिए, तभी उस चीज को आप बाहर की मार्केट में वैल्यूएबल साबित कर सकती हैं. और मैं अगर आपकी जगह हूं तो मैं पहला काम क्या करूंगा, जो बोरिंग सा काम है ना, जो मैं खाली पैसे के लिए कर रही हूँ, उसको तो पहले मैं बिल्कुल बाय बाय कर दूंगी. कि जिससे कि जो मेरा 9 to 5 का टाइम है, वो भी मैं वो काम करूं जिसमें मेरा दिल लगता है. आर यू गेटिंग मी? फिर उसे मान लो एक कस्टमर कम मिल रहा है, या मान लो मैं सैलरी वहां 20,000 मिल रही थी, मान लो सैलरी मेरी कम होके 5,000 हो गई. फिर मैं कोशिश करूं कि भाई 5,000 से मैं 20 तक दोबारा कैसे पहुंचना है. या मान लो 20 वहां से मिल रही है, और साथ में मैंने थोड़ा थोड़ा 2,000 का पैशन वाला काम शुरू किया, फिर 2,000 का वो 5,000 हुआ. फिर जैसे जैसे वो काम बढ़ेगा, फिर मैं नॉन पैशन वाले काम को बाय बाय कर दूंगी. यस सर. ये तरीका होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हर आदमी की अपनी अलग थोड़ी सी मजबूरियां भी हो सकती हैं. किसी को मान लो घर चलाने में कंट्रीब्यूशन देना है, कुछ और चीजें हो सकती हैं. तो हर समय इमीडिएटली आपको ये जो है ना, पैशन वाला जॉब शायद ना मिले. लेकिन हमारी जो उसके प्रति जो फीलिंग होनी चाहिए ना, फीलिंग, यार देखो कहाँ मैं तो मजबूरी में फंसी हूँ, ये देखो मेरे को काम करना पड़ता है, ये लोग देखो मेरा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ये देखो हमें कितना कम पैसा दे रहे हैं. आर यू गेटिंग मी? तो ये नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए. यस सर. नहीं, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं ये बात कह रहा हूँ. मैं खाली बताना चाह रहा हूँ कि अगर यस. मान लो कोई जॉब जिसमें दिल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी उसको धन्यवाद दो कि यार तेरी वजह से मेरा घर खर्चा तो चल रहा है, या जो भी मैं काम है कुछ तो कर पा रही हूँ. लेकिन साथ ही साथ ये समझ लो, ये अंत नहीं है, मेरी जिंदगी इसमें खत्म नहीं होगी. इसके साथ में मैं अपना जो और मेरे अंदर जो ज्योति जल रही है उसको मैं चमकाऊंगी, अलग तरीके से चमकाऊंगी. ये है. तो मिंटू जी, क्या मैंने कुछ आंसर दिया आपकी बात का? यस सर. ठीक है. एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर. हाँ जी, नवनीत जी बताइए. नो आपकी सर, नो नो चमकदार क्वेश्चंस. सी टाई आपकी आ गई चमकती हुई. अरे कुछ पूछ लीजिए, या आप अपनी कुछ नॉलेज शेयर कर दीजिए. आपको इस पूरे 1 घंटे में क्या चीज अच्छी लगी, क्या आपको अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, बताइए. सर आपका गाइडेंस अच्छा ही लगा, क्योंकि अगर मेहनत करते रहेंगे तो आगे कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही सफल, कहीं ना कहीं तो होगी. और अभी तो फिलहाल एज अ फ्रेशर्स है, तो शॉर्ट टर्म गोल यही है क्या, कहीं ना कहीं ज्वाइन करना है. नहीं नहीं, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसमें छोटा सा करेक्शन करूंगा कि मेहनत करना है. लोग कहते हैं ना, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस. मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ. हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, ये ऐसा साउंड होता है कि यार ये तो करना ही करना है, मैं क्या बताऊं, नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा. हार्ड वर्क की जगह होनी चाहिए हार्ड प्ले इज द की टू सक्सेस. कि हम जो काम कर रहे हैं वही आनंद है, वही खेल है, उससे सक्सेस आती है. दैट इज हाउ योर पैशन कन्वर्ट इनटू अ प्रोफेशन. कि जो भी काम कर रहे हो उसमें खेल ही नहीं रहे हो,
मतलब कोई इसमें कष्ट हो ही नहीं रहा है। जैसे कोई आदमी खेल रहा है, उसमें मजा आ रहा, आदमी नहीं थकता है। लेकिन अगर किसी को पैसे दिए जाए तू खेल, तो क्या होगा? क्या वो उस आनंद से खेल पाएगा? हाँ सर। नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उसके लिए क्या हो जाएगा, वो जॉब हो जाएगा। तो हमें एक ओनरशिप की भावना से अपना, जैसे होता है ना कि बिल्कुल कि मैं खुद ही ओनर हूं, मैं वैसे काम कर रहा हूं, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ में। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और अगर कोई और सवाल हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आई थिंक अवर टाइम इज गेटिंग ओवर। आप लोगों के कितने सेशन होते हैं रोज? इट Two डिपेंड्स sessions. ना। 2 सेशन सेशन। अच्छा अच्छा, रोज होते हैं, एवरी डे? Yes. एवरी डे 2 Yes, to sir. 3 सेशंस। ओह वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और मैं तो ये बड़ा अप्रिशिएट करूंगा, आप लोग कितने प्रोफेशनली ड्रेसेस होकर के तब सेशन अटेंड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इट इज वेरी नाइस। तो गुरप्रीत जी, क्या मैं सेशन को क्लोज करूं? व्हाट डू यू थिंक? गुरप्रीत जी हैं क्या? जी